So yesterday we discussed about the concept of irrigation and the modern practices and the traditional practices that we use to do the irrigation methods, right? So in the modern practices we have two systems, sprinkler system and the second one is drip irrigation. So it is used at the places where the land is uneven, and मैंने लिखवा दिया था that the land is uneven and the sand is और द सॉइल इज सैंडी. ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हम वहां पर करते हैं जहां पर आपका लैंड जो है वो अनइवन होता है. ओके, एंड अबाउट द सॉइल टाइप, इफ इट इज सैंडी सॉइल, दैट मीन्स योर सॉइल इज नॉट एबल टू होल्ड मोर वाटर. ठीक है, तो हम वहां पर स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो यूज करते हैं. तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, वी यूज नेटवर्क ऑफ पाइप्स. ओके, so we use network of rotating pipes that have rotating nozzles. राइट, तो ये आपने नॉर्मल घरों में भी देखा होगा या गार्डन्स वगैरह होते हैं उनमें भी ये चीज़ जो है वो हम प्रैक्टिस करते हैं. ओके, क्लियर नाउ? ठीक है अब बेटा, अभी ठीक है कि नहीं? ओके, सो डैट हैव रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप. तो उनके टॉप पे जो रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, राइट, एंड दे आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन. उन रोटेटिंग नोजल्स को हम मेन पाइपलाइन से क्या करते हैं, जोड़ते हैं. सो व्हेन द वाटर इट केम फ्रॉम द मेन पाइपलाइन, तो जो वाटर है वो प्रेशराइज्ड वाटर जो है वो आता है. ओके, थ्रू द रोटेटिंग नोजल्स एंड इट स्प्रिंकल्स इवनली ऑन द लैंड. ओके, so pressurized water is sprinkled evenly. So this is the method of sprinkler system. Now next is drip irrigation. Drip irrigation, अब ये टेक्निक बहुत यूजफुल है इन द वाटर कंजर्वेशन. ठीक है, तो इस टेक्निक को हम यूज करके अपने वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. दैट मीन्स this technique it can be employed in the areas that are having the water shortage problems. Okay, so drip irrigation system ये हम कहाँ पर यूज करते हैं, at the places which face water scarcity. So this technique is useful for places facing water scarcity, right, जहाँ पर पानी जो है वो कम होता है. And because this method it saves water, right? So what is in this method? The water it is allowed to fall drop by drop from the pipe, right? The water it falls drop by drop from the pipe near the roots. ठीक है जी, तो प्रॉपरली जो रूट्स हैं उनको हम ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो वाटर देते हैं. सो इट प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ वाटर. और ये मेथड थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बिकॉज आपको हर एक प्लांट के लिए इंडिविजुअल पाइप्स जो हैं वो एम्प्लॉय करनी पड़ती हैं. ओके,
So this method is bit expensive in nature. Now after this, we have studied that water is very, very important for the crops, right? For their growth, germination of seeds, for their proper development. Okay, water plays very, very important role. But sometimes this water, it can be harmful for the plants also, right? तो ये पानी जो है वो उनके लिए harmful कब होगा, कैसे होगा? When there is a condition of water logging, यानी कि बहुत सारा पानी जो है जब वो खड़ा रहता है, राइट, उन प्लांट्स की रूट्स में, तो दैट कैन कॉज बेसिकली हार्म टू द ग्रोथ ऑफ दैट प्लांट्स, because in the water logging situation the roots, they will not be able to penetrate, they will not be able to do the breathing. ठीक है, तो जो spaces हैं, yes, the spaces they will get filled with the water, air spaces जो हैं वो पानी से fill हो जाएंगी, and the roots, they will not be in condition to survive, to take breathe. Okay, तो वो breathe नहीं कर सकेंगे easily, and this leads, or this will affecting your growth of the plants. Okay, so हमेशा do ensure that you must give adequate amount of water to your plants as it is required by it. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में पानी नहीं देना है, because the air spaces, they will be filled with water, and in this condition your plant, it will not be getting sufficient oxygen or sufficient air spaces. Okay, right? So this is all about the irrigation method now. So after this we will be starting with the next part. अब कौन सी एक्टिविटी है नेक्स्ट हमारी आफ्टर इरिगेशन? Yes, after irrigation, what we will do now with the crops? Protection from the pests, protection from microorganisms, protection from the rodents. ठीक है, अब हमने अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है. That means the next method is crop protection. And how we are going to protect our crop? We will be using some of the chemical fertilizers or chemical based substances. Okay, right? So chemical protection, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे जो chemicals हैं, we will be using them, right, to protect our crops. So in this method, you know कि आपके क्रॉप के साथ कई बार आप देखते हो कि आपने जो प्लांट्स ग्रो किए होते हैं घर में, उनके साथ साथ कुछ छोटे छोटे प्लांट्स भी जो हैं वो ग्रो करते हैं, राइट? हाँ जी, उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे प्लांट्स भी जो हैं वो ग्रो करते हैं उसके विद द मेन प्लांट. ओके, तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? वीड्स. These are the unwanted plants that grow with the main plant. तो आपके मेन प्लांट के साथ कुछ different or other plants, they also grow, and that we called as weeds. Now weeds, they can be harmful for your main plant. कैसे harmful होते हैं हमारे मेन प्लांट के लिए? क्योंकि weeds जो हैं वो हमारे मेन प्लांट की जो भी necessities हैं ग्रोथ के लिए, वो सारी ले लेते हैं उससे. Okay, they take the adequate amount of nutrients, minerals and water from the main plant. ठीक है, तो ऐसे हमारे जो मेन प्लांट को तो चीज़ें मिल नहीं रही फॉर द ग्रोथ, वो सारी चीज़ें जो है वो कौन ले रहा है? वीड ले रहा है. ओके, सो द वीड इज टेकिंग ऑल द नेसेसरी nutrients, minerals, sunlight and each and everything from the soil which actually needed by the main plant. Okay, which are actually needed by our main plant to grow and to survive. Okay, so that's why weeds, they are harmful for our crop. Okay, so हमें ये क्या करने पड़ेंगे? We have to remove them. ठीक है, so the method of removal of the weeds is known as weeding. Right, so what do you mean by weeding now? Removal of weeds.
तो हमने अपने वीड्स को क्या करना है, वी हैव टू रिमूव देम. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज वीडिंग. Removal of the unwanted plants that grow with the main plants. This is known as weeding method. ओके अब बात ये करते हैं कि कौन कौन से वीड्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं हमारे मेन प्लांट के साथ. सबसे पहले नॉर्मली आप देखते हो ग्रास. इफ यू आर हैविंग प्लांट्स एट योर होम्स आल्सो यू सी कि सॉइल में छोटी छोटी ग्रास जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती है. ठीक है, दैट एक्ट्स एज अ वीड. ओके, वाइल्ड ओथ. तो ये कुछ वीड्स के नेम लिख रही हूँ मैं. ओके, वाइल्ड ओथ इज आल्सो एन वीड. ओके, नेक्स्ट इज शेनोपोडियम. शेनोपोडियम. तो आपने 2-3 नेम्स जो हैं वो वीड्स के लर्न कर लेने हैं. ओके, अमेरंथस. सो अमेरंथस इज आल्सो अ वीड. सिप्रस. So these are some of the examples of the weeds that grow with your main plant. And the process of removal of these weeds, okay, this is known as weeding. This is known as weeding. So in some cases like these weeds, they grow some poisonous plants, they also grow that can harm you also. Okay, that can harm the microorganisms and that can harm the farmer also. Okay, तो जो animals हैं जो उनको consume करते हैं वो उनको भी harm कर सकते हैं. So weeds can be of any type and they can be harmful to different things. That is cypress. So Anjani, why weeds they are harmful? Because see they grow with your main plants. ठीक है, आपके मेन प्लांट की जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की, सनलाइट की, सो जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो एक ही सॉइल में है ना दोनों चीज़ें, तो आपके क्रॉप की जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें जो है वो वीड्स ले रहा है. ओके, सो इन दिस वे इट इज़ इंटरफेयरिंग विद योर मेन प्लांट. ठीक है, तो आपके मेन प्लांट के साथ वो इंटरफेयर कर रहा है, उसकी सारी चीज़ें वो ले रहा है. सो योर मेन प्लांट इट विल बी डेफिशिएंट इन दीज थिंग्स. तो आपका मेन प्लांट जो है अगर वो सारी चीज़ें ऐसे लेता जाएगा तो आपका मेन प्लांट जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगा कुछ चीज़ों में. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव दीज वीड्स एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग. ओके, नाउ व्हाट मेथड्स वी कैन एम्प्लॉय फॉर डूइंग द वीडिंग. हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? हाँ जी, सो बाय पिकिंग, हैंड पिकिंग. ठीक है, हम हाथ से भी उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ हैंड पिकिंग. और हाँ जी, हाउ, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट मेथड टू रिमूव द वीड्स? हाथ से रिमूव कर दिए. नेक्स्ट इज टिलिंग बिफोर सोइंग. टिलिंग बिफोर सोइंग. तो जब हम सो कर रहे हैं, यानी कि जब हम अपनी सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं, उस पॉइंट पे भी जब हम उसकी टिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको ऑल्टरनेट कर रहे हैं सॉइल को, तो उसके बीच में भी जो आपके वीड्स हैं यू कैन बेसिकली रिमूव देम फ्रॉम देयर. ओके, सो टिलिंग बिफोर सोइंग. सो करने से पहले ही अगर अनवांटेड चीजें हैं तो आप कभी भी उनको अपनी सॉइल में से क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो. राइट, अपरूटिंग हमने कर लिया है, दैट मीन्स हैंड पिकिंग और अपरूटिंग. तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, अपरूट करना या हैंड पिक करना. ठीक है, अपरूट करना मतलब ऐसे ही उसको रूट से निकाल देना. ओके, बट द बेस्ट टाइम टू रिमूव, अच्छा एक बार अब आपने क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो कर लिए हुए हैं, राइट, अब वीड्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो वीड्स को जो निकालने का बेस्ट टाइम है वो कब है, जब उनके सीड्स या फ्लावर्स जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं. ओके, दैट इज द बेस्ट टाइम to remove that weed from there. Okay,
when they get starting with the flowers and the seeds. Okay, और क्या क्या मेथड्स आप एम्प्लॉय कर सकते हो बेटा? You can use खुरपी also, that is also known as trowel. आप सबके घर में भी होती है ये ट्रॉवल? हाँ जी, होती है ना? ये एक ऐसी शेप की बनी होती है, that is having the edge like structure like this. तो कुछ ऐसी शेप की होती है बेटा खुरपी आपके घर में, यू नॉर्मली एम्प्लॉय दिस. ठीक है, तो आप ये घर में नॉर्मली यूज करते हो खुरपी को. ऐसी शेप की होती है, कुछ करते हो यूज? हाँ जी, ठीक है. सो दिस इज खुरपी, दैट इज द मैनुअल मेथड. और आप क्या यूज कर सकते हो? यू कैन यूज सीड ड्रिल ऑल्सो. सीड ड्रिल के साथ भी आप जो है रिमूव करवा सकते हो. एंड द वेरी लास्ट इज हुई. हुई is also an agricultural tool, right, that can be used to remove the weeds. तो मैं आपको हुई की पिक्चर दिखा देती हूँ एक. बाकी सीड ड्रिल तो आपने देखा हुआ है, राइट. खुरपी भी आपको यू नो if you are using at your home. Okay, so this is hui. It will take few minutes. Right, ठीक है. So ये एक बीम है, you can see there is a beam, grip and handle, a bent plate. तो जो bent plate है that can be used to remove the weeds. ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस bent plate को सॉइल में इंसर्ट करना है. ठीक है, और इसको जो है वो मैन्युअली कोई भी खींच सकता है. ठीक है, आइदर यू कैन यूज एनिमल्स. तो जो बीम है वो आप एनिमल्स के साथ कनेक्ट कर दो. ठीक है, जैसे जैसे एनिमल्स मूव करेंगे वैसे वैसे ही ये जो बेंट प्लेट है वो अपने साथ साथ जो वीड्स हैं उनको लेती जाएगी. ओके, सो द रॉड इज देयर दैट कैन बी ऑफ आयरन एंड वुड. ओके, दैट इज हैविंग अ बेंट प्लेट ऑफ आयरन. तो जो बेंट प्लेट है दैट इज द मेन टूल दैट कैन बी यूज टू रिमूव दी वीड्स. ओके, तो इसको आप एनिमल्स के साथ भी पुल कर सकते हो यूजिंग द बीम. ठीक है, और आपने अगर मशीन के साथ इसको कनेक्ट करना है यू कैन ऑल्सो कनेक्टेड विद द मशीन. ठीक है, हाँ जी, क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर? ओके, so let me show you now खुरपी ऑल्सो. ट्रॉवल भी दिखा देते हैं आपको. जस्ट अ मिनट. ठीक है, तो केमिकल मेथड्स में वी कैन यूज वीडीसाइड्स. जैसे फर्टिलाइजर्स होते हैं ना आपके, वैसे ही हम वीड्स को रिमूव करने के लिए, उनको किल करने के लिए क्या यूज करते हैं, कुछ वीडीसाइड्स यूज करते हैं. एंड वी यूज वीडीसाइड्स लाइक 2,4-D. आपने ऐसे ही नेम्स लिखने हैं बेटा इनके. ठीक है, MCPA, MCPA, बिकॉज इनके जो नेम्स हैं, जो फुल फॉर्म्स हैं, वो बहुत बहुत बड़ी हैं, राइट. So we will be writing them in the short form as 2,4-D, MCPA, Dapalon, Metachlor, Dapalon, Metachlor, METACHLOR. ठीक है, राइट. तो ये कुछ केमिकल्स के नेम लिखे हैं मैंने. ओके, एंड दीज केमिकल्स वी कॉल देम एज वीडीसाइड्स. जैसे फर्टिलाइजर्स है ना,
वैसे ही वीडिसाइड्स हैं दैट आर यूज्ड टू रिमूव और दैट आर यूज्ड टू किल वीड्स। सो कुछ वीडिसाइड्स के नाम है 2,4-D, MCPA, डालापॉन एंड मेटाक्लोर। तो ये कुछ वीडिसाइड्स हैं आपके जो आप डाल सकते हो अपने वीड्स को किल करने के। ओके, तो ये जो वीड्स हैं इनके ऊपर एक्ट करते हैं, उनको किल कर देते हैं, राइट। इनको बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज किया जाता है क्योंकि हमारा क्रॉप भी तो है साथ में। ओके, हमारा क्रॉप भी तो है साथ में, तो हमारे क्रॉप को नहीं हार्म होना चाहिए। सो हम इसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट फॉर्म में यूज करते हैं, यानी कि थोड़ा सा लेके उसको पानी में मिक्स करते हैं। ओके, एंड दैट वी स्प्रेड ऑन दी वीड्स। Yes, these chemicals they can also affect the farmers. तो इसीलिए उनको ये डालने से पहले कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। They have to cover their mouth, right? उनको अपना फेस कवर करना पड़ता है, right? Hands and each and everything that should be covered ताकि वो उनके ऊपर ना स्प्रे हो जाए। Okay? So some precautions while using the weedicides by the farmers they are necessary so that they can only be you can say sprayed on the weeds and not on other substances. क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर यहाँ तक? तो हमने वीड्स को रिमूव करना है। वीड्स अनवांटेड प्लांट है, उनको रिमूव करने का जो मेथड है दैट इज वीडिंग। मैनुअल मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स यूज कर सकते हैं, या केमिकल बेस्ड मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो केमिकल्स में हम वीडिसाइड्स यूज करते हैं और उनके नाम लिखे हुए हैं। ओके, सो प्रिकॉशंस जैसे फर्टिलाइजर्स को यूज करने के लिए कुछ गाइडलाइंस या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, वैसे ही वीडिसाइड्स को यूज करने के लिए फार्मर्स को कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। उसको बिल्कुल डाइल्यूट फॉर्म में उनको यूज करना पड़ता है एंड दे हैव टू कवर देयर फेस एंड बॉडी पार्ट्स सो दैट द वीडिसाइड दे कांट बी स्प्रेड ऑन दैम। ठीक है, तो वो उनके ऊपर ना आ जाए। अब हमने अपने क्रॉप को भी प्रोटेक्ट करवा लिया है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज, क्रॉप को अच्छे से प्रोटेक्ट करवा लिया है, अब नेक्स्ट मेथड क्या है बेटा? आपका क्रॉप जो है वो मैच्योर हो चुका है, ठीक है, हमने उसको वीड्स से बचा लिया हुआ है, राइट। यू आर हैविंग गुड क्वालिटी क्रॉप नाउ। नाउ व्हाट नेक्स्ट? हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो अब अपने क्रॉप की क्या करनी है? हमने हार्वेस्टिंग करनी है, हार्वेस्ट करना है। Now what do you mean by the term harvesting? Yes, now you have to pull out your crops from the soil. ठीक है, तो आपने अपनी जो हार्वेस्ट है, जो अपने ग्रेन्स है, जो अपनी क्रॉप्स हैं, उनको क्या करना है? कलेक्ट करना है। ओके, राइट। So now it's time to cut the crops. Very good. Okay, so because they are ready, they are mature now, so we will be cutting our crops. So either you can uproot them, आप उनको uproot कर सकते हो, सॉइल में से डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो, या आप उनको कट कर सकते हो वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। ठीक है, तो दो वे से आप uproot हार्वेस्टिंग कर सकते हो। फर्स्ट इज uprooting एंड द सेकेंड इज कटिंग। और बहुत क्लोज कटिंग करनी है आपने, वेरी क्लोज कटिंग टू द ग्राउंड। ठीक है, एंड फॉर द सीरियल क्रॉप इट टेक्स नॉर्मली 3 to 4 months। अगर आपने कोई सीरियल प्लांट ग्रो करवाया है तो सीरियल प्लांट्स जो है वो 3-4 months तक ग्रो कर जाते हैं। ओके, सो इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप दैट यू आर ग्रोइंग एंड देयर हार्वेस्टिंग टाइम, राइट। अब अगर सपोज हमारे पास कुछ ग्रेन सीड्स हैं, कोई क्रॉप्स हैं दैट आर हैविंग सीड्स, जैसे व्हीट हो गई, राइस हो गए, ठीक है, दे आर द ग्रेन सीड्स। उस क्रॉप के हमने सीड्स अगर सेपरेट करने हैं, सो व्हाट मेथड वी कैन एम्प्लॉय फॉर दैट? आपने पढ़े हुए हैं बेटा, यू हैव स्टडीड दीज मेथड्स। यस, हैव यू स्टडीड थ्रेशिंग एंड विनोइंग? थ्रेशिंग एंड विनोइंग पढ़ के आए हो आप 6th में, 6th 7th में, आई गेस। यस,
ठीक है. So what is threshing? Threshing is the separation of the grains or seeds from the chaff. तो जो chaff part होता है, separation of grains or seeds from chaff part. This is known as threshing. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं. थ्रेशिंग जो है that can be done manually also. ठीक है, but manually it will be very time consuming. तो हमारे पास कुछ machines होती हैं that we called as combine. So that is a machine that is basically used by the farmer. Okay, तो ये एक मशीन है जो farmers use करते हैं, और जो combine है वो दोनों काम करती है. Combine, it can do both the tasks. Combine can do harvesting also, and it can do threshing also. तो अगर आप कंबाइन मशीन यूज करते हो तो वो हार्वेस्ट भी कर देती हैं और थ्रेशिंग भी कर देती हैं. ओके, सो दैट सेव अगेन टाइम एंड लेबर सेव करती है ये. ओके, और अगर हम मैनुअल मेथड पे जाएं, मूव टू द मैनुअल मेथड, तो मैनुअल मेथड आ जाता है विनोइंग. मैनुअल मेथड इज विनोइंग. Now what is there in the winnowing? हाँ जी बेटा, पढ़ के आए हो आप ये मेथड, क्या होता है विनोइंग? Yes, what is winnowing method beta? So this is the separation of the grains from the chaff by the help of wind. ठीक है, जहां पर हम wind को यूज करते हैं in order to separate the grains from the husk or from the chaff. ओके, तो उसके लिए आपने क्या करना है? आपने जो अपने ग्रेन्स हैं, राइट, यू हैव टू स्कैटर देम इन द विंड. ओके, सो यू विल बी यूजिंग द विंड. तो हमने विंड को यूज करके, ठीक है, अपने ग्रेन्स को ऐसे ऐसे स्कैटर करवाना है. एंड व्हाट विल हैपन, यहाँ से जो हैवियर ग्रेन पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाएंगे, और जो डस्ट और हस्क पार्टिकल्स हैं, राइट, दे विल मूव इन द विंड. ठीक है, तो लाइटर पार्टिकल्स दे विल मूव इन द विंड एंड द हैवियर पार्टिकल्स दे विल मूव डाउन. तो जो आपके ग्रेन्स हैं, जब आप उसको छांटोगे तो वो सारे के सारे ग्रेन्स जो हैं वो नीचे की तरफ चले जाएंगे बिकॉज दे आर हैवियर. और जो आपका लेफ्ट ओवर है, चैफ पार्ट है या हस्क पार्ट है, वो विंड में चला जाए. ओके, राइट, so this is the harvesting technique. अब उसके बाद हमें स्टोरेज रह गई है, that is the last part. So most